Welcome guys, welcome to day 5 operators in Python. Okay, so in any language we have operators. कोई भी language देख लो, आप C देखो या C++ देखो या any programming language, we have operators. So in Python also we have operators. So types of operators, 7 main types of operators are there: arithmetic operators, relational or comparison operators, assignment operators, logical operators, bitwise operators, membership operators, identity operators, and identity operators. So we will start with first arithmetic operators. So arithmetic operators are useful for what? For addition, for subtraction, any arithmetic expression. Okay. So इसमें कौन से आते हैं arithmetic operations में? From fourth standard onwards we are learning these operators. Plus is for addition, minus is for subtraction, and this star is for multiplication, and slash is for division, double slash is for floor division, and double star is for power, and percentile symbol modulus, this is for remainder. So we will see each and every operator in detail. Okay, so we will start with our first operator, arithmetic operator. So we will take one example. Arithmetic operators में कौन से plus, minus, star is for multiplication, slash is for division, double slash is for floor division, modulus is for remainder, and double star is for exponent. So we will take examples. Okay, suppose we have value a equals to 10. So I'll zoom it. Okay, a equals to 10 and b equals to 3. So यहाँ पर a की वैल्यू कितना है? 10 है, b equals to 3. So if I run this cell, so what is the shortcut to run this cell? Yes, what is the shortcut to run the cell? Shift and enter. एंड मेनली अभी आप लोगों को बताता हूं मैं कि ये जो सेल्स रहते हैं ना, वो कौन से टाइप में हो सकते हैं. ओके, सो दीज आर व्हाट? 3 टाइप्स: कोड, मार्कडाउन, रॉ. तो हमेशा है ना, अगर आप कोई कोड लिख रहे हो तो मेक श्योर आपका सेल ना कोड होना चाहिए. है समझ में? दिस शुड बी कोड, देन ओनली द पाइथन विल आइडेंटिफाई दिस इज अ कोड. ओके, सो बाकी के मैं दो ऑप्शन बताऊंगा, मार्कडाउन कब यूज करना है, रॉ कब यूज करना है. सो फर्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर इज एडिशन, प्लस. सो इफ यू डू a plus b, so what is the content of a? 10. content of b is 3. so what it will show? 13. या फिर आप ना, ये जुपिटर की खासियत है, a प्लस बी तो यहाँ पर ये दे देगा, बट जनरली यू आर वर्किंग ऑन एनी अदर आईडीज, तो आपको प्रिंट लिखना पड़ेगा. प्रिंट के अंदर a प्लस b लिखना पड़ेगा. ओके, देन इट विल शो द एडिशन ऑफ टू वैल्यूज. ओके, सिमिलरली आई कैन डू print a माइनस b. सिंपल, ज्यादा कुछ इसमें साइन मतलब साइंटिस्ट वाला कुछ ये नहीं है. इट इज व्हाट? सिंपल. a माइनस b करो, 10 माइनस 3 is 7. We will get 7. So this is for addition and this is for subtraction. Okay, then third one is star. Star means what? Whenever we use star, a star b, then it will consider as multiplication if two a and b are numbers. Okay, a star मतलब बाकी का मतलब सिनारियो में ये स्टार का बिहेवियर थोड़ा सा अलग हो जाएगा, बट इस सिनारियो में a is number, b is a number, then it will multiply. So 10 into 3 is 30. Got it? It will be used for what? Multiplication. Multiplication. Okay, multiplication. Then after that, print a slash b means what? It will divide. It will divide 10 divided by 3. Okay, it will divide. So it is showing 3.33. Okay, so simple divide. It is dividing 10 by 3. So till now we know this. So now another operator is there, floor division operator. A double slash b. What is the difference between? In interview they will ask you what is the difference between division. Okay, this is what? Division operator, and this is what? Floor division. इन दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा?
अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन मीन्स अब ये 3.33 है, तो ये डेसिमल वाला निकाल देगा, ये 3 देगा। अब इसमें अगर आप ये देखोगे मैथमेटिक्स, इफ यू गो इन योर इंजीनियरिंग और इफ यू सी 11th 12th मैथमेटिक्स इन JEE, देर इज अ स्टेप फंक्शन उसके इसमें आएगा, मैं बताऊंगा। एक दो एग्जांपल लेके मैं आप लोगों से भी मैं मतलब पूछूंगा कि व्हाट विल बी द आंसर। बट जनरली एक टेक्निक देख लो कि ये डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा, सो 3.33 का डेसिमल पॉइंट निकाल देगा। ओके, सो सिंपल। अगर यहाँ पर मैंने बोला 12 डबल स्लैश 5, एक्चुअली 12 डबल स्लैश 5 का आंसर जो भी आएगा वो आने दो। 12/5 का आंसर कितना आएगा? 12 स्लैश मीन्स दिस इज व्हाट डिवीजन। 12 डिवाइडेड बाई 5 का आंसर कितना आएगा? यस, 2.4 समथिंग, 2.4। तो 12 डबल स्लैश 5 का फ्लोर डिवीजन कितना आएगा? तो करेक्ट। ओके, सबको समझ में आ रहा है क्या? मैं और अभी दो तीन एग्जांपल लेता हूँ, सेम एग्जांपल। हाँ, अभी मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाई 2, कितना आएगा आंसर? 7 डिवाइडेड बाई 2, 3.5। 3.5। ओके, 7 डबल स्लैश 2 का आंसर कितना आएगा? कितना आएगा? 4। नहीं नहीं नहीं, मैंने यहाँ पर अभी क्या लॉजिक बताया, जो भी डेसिमल रहेगा वो डेसिमल रिमूव हो जाएगा, मैं बाद में उसका लॉजिक बता दूंगा क्यों ये हो रहा है ऐसा। ठीक है, जितना भी आप मतलब 12 डिवाइडेड बाई 5 है, 2.4 है, तो उसका 12 डिवाइडेड डबल स्लैश 4 डिवीजन 2 आ रहा है। 7/2 है तो उसका 3.5 आया, तो 7 डबल स्लैश 2 का 3 आएगा। करेक्ट। अभी मैं आप लोगों से ये बोल रहा हूँ कि -7 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? -7 डिवाइडेड बाई 2 सिंपल है। सेवन्थ एट कैंडिडेट, सेवन्थ एट स्टूडेंट्स के कैंडिडेट, सेवन्थ एट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स बता देंगे -7/2 कितना आएगा? -3.5। करेक्ट। ओके, देन व्हाट इज द आंसर ऑफ -7 डबल स्लैश 2? -3 नहीं आएगा, -4 आता है। अभी मैं बताता हूँ इसका फ्लोर डिवीजन का एक्चुअली क्या मतलब, मीनिंग क्या होता है। आप कोई भी फ्लोर डिवीजन ले लो, एक लॉजिक मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? कोई भी नंबर, नंबर लाइन सिस्टम पे मैंने मतलब यहाँ पर कोई एक नंबर लाइन सिस्टम पे मैंने यहाँ पर लिखा है 0 1 2, यहाँ पर -1। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अच्छा, आप लोगों को इंजीनियरिंग में या कहीं पे भी फ्लोर और सील का कुछ फंक्शन पता है क्या? फ्लोर और सील का, कोई भी नंबर का फ्लोर और कोई भी नंबर का सील अगर आपको दिया तो वो फ्लोर और सील आपको मतलब आइडेंटिफाई करते आता है, या फिर मैं बताऊं? मैं बता देता हूँ, कोई बात। अच्छा, एनी नंबर बिटवीन 0 एंड 1, कोई भी एक नंबर बताओ मुझे, एनी नंबर बिटवीन 0 एंड 1। यस, एनी नंबर कोई भी ले लो, 0.5। ओके, एंड एनी नंबर बिटवीन -1 एंड -2, एनी नंबर -1.5। ठीक है, अभी फ्लोर डिवीजन क्या करता है? फ्लोर डिवीजन हमेशा जो भी नंबर आप वो आ रहा है आपका, उसका लोअर वैल्यू लेता है, फ्लोर वैल्यू। लोअर मीन्स फ्लोर, हायर मीन्स सील। अभी 0 to 1 का मतलब इनके बीच में कोई भी नंबर ले लो, 0.5। फ्लोर ऑफ 0.5 इज ऑलवेज हाउ मच? इसका फ्लोर कौन सा है? ये है। इसका सील क्या है? ये है। आया क्या समझ में आपको? कोई भी नंबर का लेफ्ट साइड वाला फ्लोर होता है, राइट साइड वाला उसका सील होता है। आया क्या समझ में? 0.5 का सील कितना होता है? 1। फ्लोर ऑफ 0.5 इज 0। आया क्या समझ में आपको? अभी देखो, -1.5, इसका लेफ्ट साइड वैल्यू कौन सा होता है? फ्लोर। इसका लेफ्ट साइड वैल्यू कौन सा है? फ्लोर। इसका राइट साइड वैल्यू कौन सा होता है? सील। तो मुझे बात बताओ, फ्लोर ऑफ -1.5 कितना आता है और सील ऑफ -1.5 कितना आता है? या रन करके भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, डोंट वरी। फ्लोर का कितना आएगा? -2। सील का कितना आएगा? -1। ये सिंपल, देखो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हम लोगों ने इंजीनियरिंग में देखा है, डेटा स्ट्रक्चर में देखा है। ठीक है, या फिर आपने अगर 12th स्टैंडर्ड में JEE का कोई प्रिपरेशन किया होगा तो उसमें ना एक यूनिट स्टेप फंक्शन होता है, वो सेम ऐसे ही बिहेव करता है, मतलब सेम रहता है ऐसा। कोई भी नंबर ले लो, उसका फ्लोर या सील, ये दोनों आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो वही है यहाँ पर। अभी -3.5 ये कौन से नंबर के बीच में आ रहा होगा, मेरे को बताओ?
अभी यहाँ पर ये नंबर लाइन सिस्टम पे मैंने यहाँ पर -3 ले लिया और -4 ले लिया। मुझे एक बात बताओ, -3.5 कौन से नंबर के बीच में आ रहा है? -4 बराबर है, कहीं तो भी यहाँ पर आ रहा होगा -3.5। अच्छा, मैंने फ्लोर के लिए कौन सा बोला और सील के लिए कौन सा वैल्यू बताया मैंने? हाँ, लेफ्ट हैंड साइड वाला फ्लोर होता है एंड राइट हैंड साइड वाला कौन सा होता है? सील होता है। तो अभी मुझे बात बताओ, -3.5 का फ्लोर कितना आ रहा है? तो अपना आंसर कितना आया समझ में? एकदम देखो, ये तो आपको इसमें पाइथन के इसमें आपको ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये पाइथन को खुद पता है। मैं बताता हूँ यहाँ पर, मैं क्लियर। हाँ बोलो। हाँ, रो नंबर 16। चलो। यस, यस। सील का तो यहाँ पर मतलब क्वेश्चन ही नहीं आता, वो सील का रेडीमेड फंक्शन है, बट मैंने अभी लगे हाथ दोनों क्यों पढ़ा दिया, क्योंकि पाइथन की इनबिल्ट फंक्शन है ये। मैं अभी रन करके बताता हूँ, जस्ट अ मिनट प्लीज। यहाँ पर ना मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ना इम्पोर्ट मैथ, ठीक है। मैथ के अंदर ना हमारे पास ना फ्लोर भी है, सील भी है। मैथ डॉट फ्लोर, कौन सा वैल्यू देखना है फ्लोर का? -3.5, -3.5, ठीक है। कितना आया? लेफ्ट हैंड साइड वाला। और इसका आपको सील देखना है, मैथ डॉट सील, कितना आएगा इसका? -3.5 का सील कितना आएगा? अच्छा, मैं और एक लॉजिक बता देता हूँ, ठीक है। और एक लॉजिक ये है कि मान लो हमारे पास घर है, ठीक है। ये घर है थोड़ा सा, मतलब मान लो ये घर के अंदर ना हमारा फ्लोर होता है, ये सर नो। तो हमारे फ्लोर मतलब यहाँ पर फ्लोरिंग करते हैं ना हम लोग, दिस इज व्हाट फ्लोर, फ्लोरिंग करते हैं हम लोग। और एक सीलिंग पंखा रहता है हमारा घर में, सीलिंग फैन। इसका मतलब क्या है? सीलिंग फैन किधर रहता है? सील मतलब दिस इज व्हाट, सील मीन्स अपर, सीलिंग मीन्स व्हाट, अपर, फ्लोरिंग मीन्स व्हाट, लोअर। तो कोई भी नंबर बता दो अभी मेरे को इसके बीच में, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 एंड -4। अच्छा ठीक है, मैं एक एग्जांपल आप लोगों से ही पूछता हूँ, मुझे बता देना। -1 और 0 के बीच में कोई एक नंबर ले रहा हूँ यहाँ पर मैं, कुछ -0.8, -0.8, इसका फ्लोर क्या आएगा और इसका सील क्या आएगा? एवरीवन, विशाल। लेफ्ट साइड वाला हमेशा हमारा कौन सा रहता है? फ्लोर होता है। और राइट साइड वाला हमारा सील होता है। तो चलो देख लेते हैं अभी। मैथ डॉट, ये इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। मैथ डॉट फ्लोर, यस। देखो कैसा है, डॉट रे, डॉट से आने वाले हर एक ना हम लोग उसको मेथड बोलते हैं, डॉट से आने वाले। बट एक्चुअली कैसा होता है कि जब हम लोग इनबिल्ट फंक्शंस बोलते हैं, अभी जैसे कि जो भी क्लास के है, ठीक है, क्लास के फंक्शंस को हम लोग मेथड्स बोलेंगे। मेथड्स एंड फंक्शंस बोथ आर सिमिलर, बट जहां पर डॉट आता है उसको हम लोग मेथड्स बोलते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग के मेथड्स, लिस्ट के मेथड्स, ठीक है। तो वो डेटा टाइप उसका एक क्लास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं फंक्शन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ये फंक्शन बोलेंगे इसको हम लोग, ठीक है। ठीक है, मैं अभी यहाँ पर बताता हूँ आप लोगों को। तो फ्लोर ऑफ -0.8, ठीक है। तो इसका क्या आना चाहिए? -1 आना चाहिए, करेक्ट, -1। मैथ डॉट, ठीक है, मैथ डॉट सील, तो यहाँ पर क्या आएगा? -0.8 के लिए क्या आएगा? ये 0 आएगा। आया समझ में? सिंपल सा है, लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला, फ्लोर और सील, ठीक है। सो कमिंग टू, मैं आप लोगों को मतलब अलग से लेक्चर में बताऊंगा मैं कि फंक्शंस कभी बोलना है और मेथड्स कब बताना है, ठीक है। वेट, इसका डिटेल हम लोग देखेंगे डिस्क्रिप्शन। ओके, सो आई होप आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मॉड्यूलस, रिमाइंडर, जो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट ऑपरेटर है। कोई भी प्रोग्राम आपको इंटरव्यू में पूछा कि मुझे रिवर्स करना है कोई डिजिट, या कोई नंबर दिया है उसको रिवर्स करना है, तब ये मॉड्यूलस ऑपरेटर आपको यूज होगा, ठीक है। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है? रिमाइंडर फाइंड करके देता है आपको। मान लो कि हमारा ए की वैल्यू कितना है? 10 है, ओके। ए इक्वल्स टू 10 एंड बी इक्वल्स टू हाउ मच? 3। सो अगर इसका डिवीजन करोगे, इसका डिवीजन अगर होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? हाउ मच, कितना आएगा रिमाइंडर? 3। 3, 10 को 3 से डिवाइड करें, 3 3 जा 9, मतलब कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। आ रहा है समझ में? तो ये जो है आपको रिमाइंडर देगा। रिमाइंडर ए मॉड्यूलस ऑफ बी कितना आ रहा है? 1। आया क्या समझ में? और दो एग्जांपल ले लेता हूं मैं,
और दो एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो कि आपके पास 12 है एंड मॉड्यूलस 12 मॉड्यूलस ऑफ 5 कितना आना चाहिए आंसर? द आंसर इज 2। करेक्ट। कैसे कैसे आएगा? 5 5 को 12 को 5 से डिवाइड करना है। 5 टू ज़ा 10। अब ये नंबर अगर इससे छोटा है तो हम लोग आगे बढ़ते ही नहीं। सो दिस इज योर रिमाइंडर। अच्छा, जब मतलब आपका नंबर छोटा हो, मान लो कि 5 मॉड्यूलस ऑफ 12 क्या होगा? 5 मॉड्यूलस ऑफ 12, 5 मॉड्यूलस ऑफ 12। जब भी आप, अभी इसको हम लोग डिवाइड तो नहीं कर रहे, ठीक है, इससे ये बड़ा नंबर आ गया तो वही नंबर दे रहा है। जैसे कि यहाँ पर 1 मॉड्यूलस ऑफ 2 बोल रहा हूँ मैं। 1 मॉड्यूलस ऑफ 2 का कितना आ रहा है? वही आ रहा है। ठीक है, ये सब ना प्रैक्टिस करने के बाद समझ में आता है आप। सो रिमाइंडर जब भी आपको, मान लो कि मुझे ये यूज कब करूंगा मैं? कोई नंबर को 10 से मॉड्यूलस करेंगे तो उसका आखिरी नंबर देता है आपको। मान लो कि मेरे पास 1024 है, 1024 मॉड्यूलस ऑफ 10 करता हूं मैं। मॉड्यूलस ऑफ 10 करूंगा ना तो लास्ट का नंबर आता है। कितना है लास्ट नंबर? लास्ट डिजिट इज 4। ठीक है। फिर बाद में अगर मैंने 956 मॉड्यूलस ऑफ कितना 10 अगर कर रहे हो, ये शायद हमको 6 स्टैंडर्ड में, 7 स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया है कि किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड करते हो, 10 से डिवाइड करते हो, 100 से डिवाइड करते हो, 1000 से डिवाइड करते हो, तो उसका बिहेवियर कैसे होगा? अभी मैं 10, हाँ 10 से डिवाइड करूंगा तो आपको लास्ट नंबर देगा। अगर वही नंबर मैंने 956 को मॉड्यूलस 100 बोलूंगा मैं, हाँ, तो ये चीज है। मतलब इसमें ना, अभी मैं जो एग्जांपल बोला ना, किसी नंबर का आपको रिवर्स करना है, किसी नंबर को रिवर्स करना है, ठीक है, तो यहाँ पर ना क्या करना है उस केस में, तो मैं जब वो पढ़ाऊंगा ना फंक्शंस तब आपको समझ में आएगा। ये पहले 4 को अलग कर लो, फिर 102 को अलग करो, फिर 102 को 10 से डिवाइड करो मॉड्यूलस से, तो ये काम आता है। तो मॉड्यूलस का काम सिर्फ रिमाइंडर फाइंड करना, मतलब ये रिमाइंडर ही है, बट हम लोग ना डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो में इसका यूज करेंगे हम लोग। आपको मॉड्यूलस ऑपरेटर समझ में आया क्या? यस और नो? ठीक है, गुड गुड। नेक्स्ट ऑपरेटर इज एक्सपोनेंट ऑपरेटर। एक्सपोनेंट का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 2 रेज टू पावर 3 है, उसको कैसे लिखेंगे? ऐसे थोड़ी लिखेंगे हम लोग, 2 रेज टू पावर मतलब 3, ऐसे नहीं लिखते पाइथन में। डबल स्टार मीन्स रेज टू पावर, 2 रेज टू पावर 3। 2 रेज टू पावर 3 का मतलब क्या है? 2 रेज टू पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। आया क्या समझ में? सो द आंसर इज हाउ मच? वही अगर यहाँ पर मैंने 5 डबल स्टार 3 करता हूँ, 5 डबल स्टार 3 का मतलब क्या है? 5 रेज टू पावर 3। 5 रेज टू पावर 3 का मतलब क्या होता है? 5 इंटू 5 इंटू 5। सो दिस इज वॉट 25। द आंसर इज 125। करेक्ट। सो दिस इज वॉट 125 डबल स्टार। गॉट इट? डबल स्टार कब यूज करेंगे हम लोग? जब भी पावर करना है हमको, पावर, तब आपको वो यूज करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर A = 10, B = 3, 13, 7, 30, 3.333, ये यहाँ पर मैंने एक बार में इसका लिख दिया। इसमें कुछ डाउट है क्या? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस एंड पावर। Next operator is relational operator. Then when to use relational operator? To compare, to compare the value, to compare the values. ओके, सो यहाँ पर ना इसको थोड़ा सा हेडिंग बना लेता हूँ मैं। सो दिस इज व्हाट, अभी अभी मैंने क्या बोला आपको, ये कोड है ना, इसको मार्क डाउन करो। इसमें मतलब कर्सर रख के यहाँ पर मार्क डाउन करना, और इसको आप यहाँ पर हैश 1 सिंगल हैश, तो जस्ट सॉरी, इसको हम लोग क्या करेंगे, रॉ में किया तो वो ऐसे आ जाएगा एज इट इज। और यहाँ पर ना इसका शॉर्टकट बताता हूँ मैं आपको। इसको 1 प्रेस करोगे ना तो ये आ जाएगा आपको ऐसे, मतलब हेडिंग के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको रॉ बनाता हूँ, या फिर उसको हम लोग कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑपरेटर डिस्क्रिप्शन एंड एग्जाम्पल। डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू समथिंग, ये वाला हम लोग देखेंगे, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल देख लो। चलो बताओ, कोई एक नंबर बता दो, उसके हिसाब से हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। ए वैल्यू और बी वैल्यू, चलो बताओ। A = हाउ मच? ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, या XYZ ले लो। मान लो A =
100 and b equals to 200. Okay, so first one is double equals to ऑपरेटर. कोई दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंगल इक्वल रहता है इक्वलिटी के लिए, बट यहाँ पर डबल इक्वल. डबल इक्वल मीन्स व्हाट? ये हमेशा हमको है ना ट्रू और फॉल्स में ही देता है आंसर. मैं क्या करता हूँ, ए डबल इक्वल्स टू बी, इसका मतलब क्या है कि ये कंटेंट चेक करता है ए का कंटेंट बी के कंटेंट के साथ. ए का कंटेंट है 100, बी का कंटेंट है 200. क्या दोनों सेम है? क्या नहीं है. क्या 100 200 सेम है? क्या नहीं है. नहीं है तो ये फॉल्स देगा. है समझ में? चाहे आप प्रिंट के अंदर भी लिख सकते हो, प्रिंट के अंदर ए डबल इक्वल्स टू बी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डबल इक्वल्स टू is for comparison operator. It is to check the content of A and B. Next operator is what? Not equal to. Not equals to means what? A not equal to B. अच्छा, क्या 100 200 में नॉट इक्वल्स टू का क्या आएगा? मतलब अगर इक्वल टू फॉल्स दे रहा है तो नॉट इक्वल्स टू क्या देगा? ट्रू देगा. ओके, देन ये प्रिंट के अंदर भी लिख सकते हो आप. तो PRINT प्रिंट, प्रिंट के अंदर वो आएगा. सॉरी. ओके, देन PRINT प्रिंट ए कॉमा बी बोल रहा हूं मैं यहाँ पर. सो PRINT प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी. क्या आएगा? बोलो. ए इज ग्रेटर देन बी. फॉल्स. करेक्ट. PRINT प्रिंट ए इज लेस देन बी. 100 इज लेस देन 200, तो ट्रू आएगा. राइट. PRINT प्रिंट ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी. पहले ग्रेटर देन आएगा फिर बाद में इक्वल टू आएगा. ठीक है. ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या आएगा? ये अगर ग्रेटर ग्रेटर है तो भी चलेगा या फिर इक्वल टू है तो भी चलेगा. दोनों में से कुछ होना चाहिए और कंडीशन. सो ना तो ग्रेटर है ना तो इक्वल है, तो ये क्या आएगा? फॉल्स ही आएगा. PRINT प्रिंट ए इज लेस देन और इक्वल टू क्या आएगा? ये यस इट इज लेस देन, तो ये ट्रू आएगा. आया क्या समझ में? अभी ये तो नंबर्स के ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर. क्या स्ट्रिंग के ऊपर हम कंपैरिजन ऑपरेटर कर सकते हैं? यस. मेरे पास ना दो स्ट्रिंग है. मान लो कि कुछ x इक्वल्स टू डेटा रो एंड y इक्वल्स टू डेटा डेटा रो. सो कैन यू टेल मी, अगर ऑपरेटर्स कंपैरिजन ऑपरेटर्स नंबर्स पे चलते हैं तो इस पे भी चलते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर मैंने x इज ग्रेटर देन y बोला तो क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? ये क्या ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा या कंपैरिजन नहीं कर सकते हम लोग स्ट्रिंग के बीच में? ये तीनों में से आप क्या बताओगे? मतलब व्हाट विल बी योर आंसर? हाँ, इट विल कंपेयर द कैरेक्टर. ओके, सो आउटपुट क्या आएगा बताओ? फॉल्स. ओके. यस. एनी अदर क्वेश्चन आंसर्स? सो मैं इसको रन कर रहा हूँ. इसको रन कर रहा हूँ. ये फॉल्स आ रहा है. व्हाई इट इज कमिंग एज फॉल्स? अच्छा, ठीक है. सो व्हाट आई विल डू हियर, आई विल असाइन अनदर thing is what? Data to cloud. Data to cloud. Okay, this is my first string. Second string is Vishal. Okay, I will run this. Now tell me, x is greater than v. Sorry, not v, y. So what is the story behind this comparison? Character तो character compare कर रहा है, ठीक है. Story behind this comparison कैसे हो रहा है? Okay, और yes. यस, एनी आंसर्स? और कुछ टिप्पणी करना चाहते हो तो करो. हम्म. ओके. हम्म. ओके. सो आई विल टेल यू. डू यू रिमेम्बर ASCII वैल्यूज? ASCII वैल्यूज, व्हाट इज द ASCII वैल्यू ऑफ ए? चलो ठीक है, कोई बात नहीं. 65. एंड व्हाट इज द ASCII वैल्यू ऑफ ए? अराउंड 97 समथिंग. 97. तो वो देखो, वो तो हमें मतलब ये तो कभी भूल गए तो ठीक है, बट पाइथन इज देयर ना. पाइथन इज देयर. सो पाइथन में ना हमारे पास ना एक ORD फंक्शन है. ORD. ORD के अंदर ना आप वो कैरेक्टर लिख दो. ठीक है. तो इसका ASCII वैल्यू जो भी रहेगा ना वो बता देगा आपको. ORD मीन्स ऑर्डिनल, ऑर्डिनल नंबर दे देगा. ORD of A is how much? 65. Means ASCII value of A is 65. What is the ordinal value? Means ASCII value of lower case a, 97. Correct. So now tell me, if you comparing the A with another A, means what? You are comparing directly ASCII values. So now tell me, 65 is greater than 97. True or false? 65 is greater than 97. ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? फॉल्स ही आएगा ना. नहीं 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 नहीं, वहीं पे आ रहा हूं मैं. पाइथन में ना यहाँ पर स्ट्रिंग
फर्स्ट कैरेक्टर वर्सेस फर्स्ट कैरेक्टर। अगर उसमें टाई हो गया तो सेकंड कैरेक्टर वर्सेस सेकंड कैरेक्टर रहेगा, वो भी टाई हो गया थर्ड कैरेक्टर वर्सेस थर्ड कैरेक्टर, ऐसा होता है क्या समझ में? वो भी एग्जांपल लेता हूं मैं अभी। सो ये समझ में आया क्या आप लोगों को? एस की वैल्यू मतलब अगर मैंने कल ये लिखा ए कैरेक्टर इज ग्रेटर देन ए कैरेक्टर, मीन्स अपर केस ए वर्सेस लोअर केस, मैं ग्रेटर बोल रहा हूँ, ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? अभी बता दो मुझे। करेक्ट, फॉल्स आएगा। अभी देखना यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ए कैरेक्टर इज ग्रेटर देन लोअर केस ए कैरेक्टर। अभी कोई आपसे पूछा कि ये स्ट्रिंग कंपैरिजन होता कैसे है, तो सिंपल से बोलने का कि अपर केस ए कैरेक्टर हैज इट्स ओन ASCII वैल्यू दैट इज 65 and lower case a has its own ASCII value that is 97, and indirectly or directly we are comparing with 65 with 97। अभी ये जो मेरा अभी ये वाला है एग्जाम्पल, दिस वन, अभी इसके ऊपर आते हैं हम लोग, ठीक है? ये एग्जाम्पल लेता हूं मैं। इस एग्जाम्पल में मैं क्या करता हूं, ये भी कैपिटल, ये भी कैपिटल, लोअर 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 लोअर। यहां पर कौन जीतेगा? यस, एक्स इज लेस देन वाई, ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? बताओ। यस, एनी आंसर्स? अभी ट्रू बोलो या फॉल्स बोलो, बट उसके पीछे स्टोरी क्या चल रहा है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है? अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो ये ट्रू आया। क्यों ट्रू आया मैं बताता हूँ। ASCII वैल्यूज, बट कौन से ASCII वैल्यूज? जैसे प्रदीप ने क्या पूछा कि ये कैसे पूरा टोटल, इसका मतलब ये डेटा रो का टोटल ASCII कार्ड निकालेगा और इसका टोटल ASCII वैल्यू फिर टोटल टोटल करके? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, पहले कैरेक्टर और पहले कैरेक्टर में क्या हो रहा है? टाई हो रहा है कि क्या हो रहा है? दोनों सेम है, टाई हो गया। देन पाइथन विल चेक नेक्स्ट कैरेक्टर विथ नेक्स्ट कैरेक्टर, ये भी टाई हो गया। देन टी थर्ड कैरेक्टर, ये भी थर्ड कैरेक्टर, यहाँ पर भी टाई हो गया। नेक्स्ट फोर्थ कैरेक्टर ए से मैच हो रहा है क्या? यस, मैच हो गया। मतलब फर्स्ट फोर कैरेक्टर्स क्या हो गया? वो टाई हो गया। नेक्स्ट वन इज अपर केस एंड लोअर केस। अभी तो बताया मैं, अपर केस आर एंड लोअर केस आर, इसमें बड़ा कौन है? एस की वैल्यू में बड़ा कौन सा है? एस की वैल्यू, इसका एस की वैल्यू बड़ा है कि इसका वैल्यू बड़ा है? लोअर का बड़ा है, बराबर है। तो मैं अगर ऐसे दिया, इसका आंसर ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? इसीलिए ट्रू आ रहा है। एनी क्वेश्चंस? आप लोग दो देना मुझे, चलो स्ट्रिंग देना मुझे, कोई भी दो स्ट्रिंग देना। अच्छा, स्पेस आया तो क्या होगा? स्पेस आया तो क्या होगा? स्पेस को भी कंसीडर करेगा, स्पेस इज ऑल्सो योर कैरेक्टर, सो स्टिल इट रिमेन सेम। यस यस, व्हाई नॉट? कि डेटा रो का ये आर यहाँ पर कैपिटल। तो अभी बताओ, कौन बताएगा आंसर क्या आएगा अभी? मैं भी नहीं, करेक्ट बताना, मतलब इसमें आपके सामने ही है ना, मतलब यस, क्योंकि ये तो मैच हो गए फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स, ये 4 कैरेक्टर्स, डेटा स्पेस के साथ स्पेस मैच हो गया। तो मतलब वो जब तक वो कंपेयर करते रहेगा उसको, कंपैरिजन जब तक नहीं मिलेगा, टाई नहीं होगा, जब तक मतलब कोई ना कोई एक जीत जाएगा, वो उसको ले लेगा। है क्या समझ में? कोई भी एक एग्जांपल ले लो आप, इसमें मतलब ज्यादा कुछ ये नहीं है। अगर सेम है तो क्या आएगा सर? दोनों सेम है तब क्या होगा? ये दोनों सेम है यहाँ पर, तो क्या आएगा इसका आंसर? एक्स, मैं प्रिंट में लिखता हूँ, प्रिंट के अंदर एक्स डबल इक्वल्स टू वाई, ठीक है? अभी मैं थोड़ा सा ये डेटा रो को मतलब एक इसमें ले लेता हूँ, इसको रन किया मैंने, और ये प्रिंट क्या आएगा? ये एक्स डबल इक्वल्स टू वाई, मीन डबल इक्वल्स टू का मतलब क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर, इट कंपेयर्स वेदर these two values are similar or not. If these two values are similar, then it will return true. करेक्ट? तो अब इसका आंसर क्या आएगा? आएगा ही आएगा बोलने का भी, ठीक है? आने को होना नहीं, दैट इज व्हाट समवट डाउटफुल आंसर, नहीं, ट्रू ही आएगा। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, और एक ले लेता हूँ उसी के नीचे, ठीक है? नॉट इक्वल्स टू वाई, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वाई, सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा? अभी मैं उसी के नीचे लेस देन बोल रहा हूँ, लेस देन एक्स इज लेस देन वाई। क्यों फॉल्स आएगा? क्योंकि कोई भी नंबर, अभी ले लो यहाँ पर 5 इज लेस देन 5, क्या 5 से छोटा है? क्या 5 से छोटा है? क्या नहीं है, तो फॉल्स ही आएगा वो। अगर दोनों सेम है और दोनों सेम वैल्यूज को आप लेस देन या ग्रेटर देन में यूज कर रहे हो, तो वो फॉल्स ही आएगा। एक्स इज ग्रेटर देन वाई, क्या आएगा? ये फोर्थ वाला फॉल्स ही आएगा ना, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। चलो अभी मैं नेक्स्ट पूछ रहा हूँ मैं अभी, ग्रेटर देन और इक्वल टू, हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ उसमें ही, मैं जब प्रोनाउंस कर रहा हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब एक तो ग्रेटर होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए। दोनों में से तो इक्वल है, तो इक्वल का आंसर क्या आएगा?
ट्रू आएगा, फिफ्थ वाला ट्रू आएगा, आया। उसी के नीचे मैं लेस देन और इक्वल्स टू बोल रहा हूँ, लेस देन और इक्वल्स टू, ये भी ट्रू आएगा। फोर्थ का, ये थर्ड और फोर्थ का, फोर्थ का मतलब यही ना। अभी अभी कैसा है, कोई भी वैल्यू उस वैल्यू से छोटा थोड़ी होता है। हाँ, अच्छा, कोई भी नंबर उस नंबर से बड़ा होता है क्या, उसी नंबर से वो बड़ा है क्या, तो क्या आएगा। अभी मुझे एक बात बताओ, आपके स्ट्रिंग में ना तुषार है, ठीक है, तुषार इज ग्रेटर देन सेम, मतलब वही तुषार, कोई डिफरेंस है क्या इस तुषार स्ट्रिंग में और इस तुषार स्ट्रिंग में, इज देयर एनी डिफरेंस, नहीं है ना। सेम तुषार इज ग्रेटर देन सेम तुषार, तो क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, फॉल्स। और यही चीज मैंने लेस देन पे अप्लाई किया, सेम स्ट्रिंग इज लेस देन सेम स्ट्रिंग, क्या आएगा आंसर, फॉल्स ही आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, हैविंग एनी डाउट। सो आज हम लोगों ने दो ऑपरेटर्स देखा है। In day 5, we have seen only two operators. So in next session, we will see assignment operator, logical operator, and bitwise operator. Okay. So I am stopping here. We will see a rest of all operators in day 6.